function, whenever we write any code, this code is written within a single file, and this is single, in this single file this is called, say for example this is main. अभी तक हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखे हैं, so all the programs are written within the main. तो अगर मान लो ये प्रोग्राम का लेंथ बहुत ज़्यादा है, this is a large application, बहुत एक बड़ा एप्लीकेशन है. Here we have say for example 2000 लाइन का एक कोड है, 2000 लाइन का कोड है. So definitely it is quite possible यहाँ पे near about 300 variables होगा. अब 300 variables को याद रखना और उसको लेके काम करना, it is too much difficult. Remembering all those variables and working with all those variables, it is too much difficult. So this is first problem. Second problem, so this called is variable complexity. Second problem is what? If the line number is huge, बहुत line होगा तो क्या होगा? यहाँ पे the debugging, if you are trying to debug the code, debug means अगर प्रोग्राम में कोई एरर आया उसको रेक्टिफाई करेंगे, चेक करेंगे, फिर से कंपाइल करेंगे, फिर से, so at the correcting the errors, so the debugging process will be very tough, क्योंकि कौन सा लाइन में क्या है, 10,000 लाइन में, 1,000 लाइन में, 100, 700 लाइन में, so this will be very much difficult debugging problem. Third problem is the code is not readable. Code is not readable. Readable means यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, so ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, एंड क्लासीफाई करना पाना भी बहुत मुश्किल है. और अगर मान लो कोई in an organization some people, some employees working on this project, he left the job, छोड़ के चला गया किसी और कंपनी बेटर अपॉर्चुनिटी मिला तो, or something for different cases. So the next who will come and take care of about the project, he will not able to understand what is written actually. यहाँ से लाइन नंबर 30 से 90 तक क्या लिखा हुआ है, लाइन नंबर 100 से क्या लिखा हुआ है. So these are the problems. और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सेम टाइप ऑफ जॉब, से फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट ए टू द पावर बी. इस प्रोग्राम के अंदर बहुत जगह पे मैथमेटिकल इक्वेशन है, कहीं पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 7 टू द पावर 8, कहीं पे कैलकुलेट कर 2 टू द पावर 3, कहीं पे 4 टू द पावर 9. सो देखो एक ही जॉब है, जॉब क्या है, ए टू द पावर बी. ये है कहीं पे ए है 7, कहीं पे ए है बी है 8, कहीं पे ए है 2, बी है 3. सो द जॉब इज ऑफ सेम टाइप, बट we are struggling with this code. Why you are struggling? ए टू द पावर बी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 3-4 लाइन तो लिखेंगे ही, फिर सेम कोड फिर से लिखेंगे, फिर से सेम कोड लिखेंगे. So why we will go for the writing the same code again and again? The task is same. तो क्यों ना हम इसको अलग बना ले, क्यों ना हम ये सारे कोड को अलग बना ले. इससे क्या हो जाएगा, लाइन नंबर ऑफ कोड विल बी मोर लेस, और line number of codes or number of lines in the code will be less, and we will easily able to develop this one and we can able to call at any point of time. तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, more readable हो जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, reusable हो जाएगा. So same thing can be used multiple times. और एक सिनेरियो सोच सकते हैं, in our home, say for example we have many tasks. घर में बाजार से सामान लाना, घर साफ करना, किचन में खाना बनाना. So there are so many tasks. If a single person is doing all those jobs, this is very difficult. So rather than doing this, what we will do, we are just dividing the job to different persons. So I will call one, he will do this type of jobs, another person he will do this type of jobs, another person will do this type of jobs. So every person is doing their own jobs, and at the end of the day they will reply back to that particular module. Say for example, another example, like I want to calculate some equation like y equal sin x plus integration 0 to 1 y, मान लो यहाँ पे z dz plus k square. So what are these? This is nothing but some equation. Now we want to calculate this equation.
अब सारे काम को अगर एक ही मॉड्यूल के लिखोगे दैट विल बी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी कैन डू. सो ये यहाँ पे ये मेरा मेन मॉड्यूल है. दिस इज आवर मेन फंक्शन. दिस इज आवर मेन मॉड्यूल. मेन इज कॉलिंग वन फंक्शन. कोड को डिवाइड कर दिए. एक मॉड्यूल में साइन एक्स कैलकुलेट हो रहा है, एक मॉड्यूल में इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो रहा है, एक और मॉड्यूल में के स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है. आफ्टर कैलकुलेटिंग दे आर रिटर्निंग बैक ऑल दीज वैल्यूज. After calculating, they all are returning back these values. So by this way, we can easily implement the code, and each module is called a function. And this is the advantage, and this is the beauty of the C language. By help of these functions, we can easily implement any code. Now let's have a look how the thing can be implemented very easily with a basic example. Say for example, I am trying to calculate एडिशन और टू नंबर. मैं दो नंबर का एडिशन एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. मान लो यहां पे लिखा हुआ है void main. टास्क क्या है, जॉब क्या है, दो वेरिएबल है, एक का नाम है x, एक का नाम है y और एक वेरिएबल है z. x का वैल्यू क्या है 3 है, y का वैल्यू 5 है, z का वैल्यू क्या होगा x प्लस y स्टोर हुआ और हम यहां पे प्रिंट कर दे रहे हैं printf %d z. Now this is our normal program, normal flow. This is आम जिंदगी. अब मेंटर्स जिंदगी में चलते हैं. So in another case, what we are trying to do, ये मेरा एक टास्क है, ये मेरा एक टास्क है. मान लो ये कॉम्प्लेक्स टास्क था, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क था. कुछ भी एक इक्वेशन, लंबा इक्वेशन, जैसे कि इंटीग्रेशन. पिछले एग्जांपल हम लोग देखे हैं कि एक लंबा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन. नाउ हम इस काम को किसी और मॉड्यूल में करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इसके वेरिएबल बदल देते हैं खाली, है ना. लिखते हैं c इक्वल a प्लस b, है ना. अब यहां पे इस प्रिंटिंग जॉब को, ये जो प्रिंटिंग जॉब है, इस प्रिंटिंग जॉब को भी अलग कर देते हैं. प्रिंटिंग जॉब को भी अलग कर देते हैं. अलग कर दिए. देखो ये दोनों जॉब को हम किसी मॉड्यूल में लिख दिए, अलग मॉड्यूल में लिख दिए. ठीक. अब इन दोनों को रख देते हैं किसी जगह के अंदर. नाम देते हैं यहां पे int c और इस मॉड्यूल का नाम देते हैं void add add. यहां पे देते हैं दो वेरिएबल int a int b. ठीक. अब देखो यहां पे हम लिखते हैं main void main. दिस इज आवर मेन फंक्शन. मेन के अंदर मैं दो वेरिएबल लिखता हूं int x y और x इक्वल 5 y इक्वल 9. अब यहां पे कॉल करते हैं add x y. अब देखो इससे क्या हो गया, क्या सुविधा हुआ, इससे क्या सुविधा हुआ. ये जो टास्क था, ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क था, इस टास्क को हम अलग कर दिए. इस टास्क को हम अलग कर दिया. यहाँ पे इस टास्क को हम अलग कर दिए. यहाँ पे कुछ भी टास्क हो सकता है, कुछ भी, और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है. इस टास्क को हम अलग कर दिए और मेन से इसको कॉल कर दिए. तो इससे क्या हो जाएगा. सो पहले मेन कॉल हुआ, डिक्लेयर हुआ वेरिएबल, x के अंदर 5 गया, y के अंदर कुछ 9 गया वैल्यू. एड, ये फंक्शन कॉल हो. ये जैसे कोई बंदा, कोई नाम जॉय को हम कॉल कर रहे हैं. जॉय जानता है कि हाउ टू कैलकुलेट एड. नाउ यहाँ पे x का वैल्यू a में गया, y का वैल्यू b में गया, x का वैल्यू हो गया 5, y का वैल्यू हो गया 9. c यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, a प्लस b, a का प्लस b ऐड हुआ, a प्लस b 5 प्लस 9 ऐड हो गया. कितना हो गया 14 हो गया. c का वैल्यू 14 हो गया. 14 होने के बाद c यहां से डिस्प्ले हो गया. दिस इज सो सिंपल. सो दैट मीन्स सो सिंपल थिंग. देयर आर 2 स्टूडेंट. एक स्टूडेंट है क्लास में, 2 स्टूडेंट है यहाँ क्लास में. ये स्टूडेंट और एक स्टूडेंट, एक का नाम है जॉय और एक का नाम है सैम. अब ये है टीचर, हमारे गुस्से वाले टीचर, है ना. बहुत ही गुस्से वाले टीचर है ना. बहुत ही गुस्से वाले टीचर है. अब टीचर इज आस्किंग सैम कि भाई सैम बोलो तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा. और सैम मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक है, तो सैम
क्या करेगा? व्हाट सैम इज डूइंग? सैम का दोस्त कौन है? जॉय बगल में बैठा हुआ है। तो सैम ने जॉय को बोला खुद ना करके 3 और 5 का एडिशन क्या है? तो जॉय ने बोल दिया 8। तो क्या हो जाएगा? तो कैलकुलेट पर्पस मेरा सॉल्व हो गया। काम अकेले ना करके काम हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जॉय को कुछ काम दिए सर, सैम को कुछ काम दिए सर ने, जा तो बाहर जाके क्लासरूम के बाहर जाके वहां से थोड़ा ग्राउंड को साफ सफाई कर देना। तो सैम जॉय को बोला तो जाके ये कर ले, किसी और बंदे को बोला तुम जाके ये कर लो। तो दिस वे द टोटल टास्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल मॉड्यूल्स। So if we write the code again here, this is our void main, this is our main module where we have variable int x and y, दो वेरिएबल था यहाँ पे, और x और y का वैल्यू इनपुट हो रहा है यूजर से। इनपुट कुछ भी, इनपुट x का वैल्यू मान लो 5 है, y का वैल्यू 4 है, कुछ भी इनपुट, और कॉल हो गया add x, y। अब यहां पे और एक फंक्शन है void add int a b, int this is int b। अब b के अंदर कैलकुलेट हुआ int c equal a plus b, and here we are printing, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं C का वैल्यू। सो सिंपल, बहुत ही आसान प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो देखो यहाँ पे देखो, मेन एक मॉड्यूल था, मेन था एक मॉड्यूल, मेन एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में कुछ लिखा हुआ है, इस मॉड्यूल किसी और मॉड्यूल को कॉल करता है। तो मेन एक खुद एक फंक्शन है और हम लोग एक फंक्शन बनाए। इन हमार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 टाइप का फंक्शन है। एक है लाइब्रेरी फंक्शंस, जैसे printf, scanf, ये फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है जिसको हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, उसके थ्रू कॉल करते हैं। और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये जो फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग अपने सुविधा के लिए बना रहे हैं। अब जो फंक्शन कॉल करता है, जो फंक्शन जैसे मेन कॉल करता है, तो मेन को बोलेंगे कॉलर फंक्शन। मेन को क्या बोलेंगे? मेन को बोलेंगे हम लोग कॉलर फंक्शन। कॉलर फंक्शन जिसको कॉल किया जाता है उसको बोलेंगे कॉल्ड फंक्शन। तो यहां पे और समझने का कुछ नहीं है, दीज आर नाउ नथिंग बट सम टेक्निकल टर्म्स जो हमको याद रखना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। दिस इज कॉलिंग, ओके, दिस आर द कॉलिंग। यहां पे ये जो पूरा जो है इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। जब हम लोग फंक्शन डेफिनेशन देंगे, कोई भी फंक्शन यूज होगा, तो मेन के पहले एक इसका सिग्नेचर जो है, ये है सिग्नेचर, इसको लिखना पड़ता है void add। ये जो सिग्नेचर 2 वैल्यू लेता है int, int। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये वेरिएबल दोनों को बोलते हैं पैरामीटर, और यहां पे ये दोनों को भी बोलते हैं पैरामीटर। दिस इज ऑल्सो पैरामीटर, दिस इज ऑल्सो पैरामीटर। इसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ये है फंक्शन का बॉडी, यहां से जो भी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फंक्शन का बॉडी, बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये है क्या? फंक्शन का नेम। ये क्या है? फंक्शन का रिटर्न टाइप, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है? अब भाई यहां पे सर ने सैम को बोला, जॉय ने आंसर दे दिया 8, तो सर मारेगा नहीं? सैम तुमको मैं बोलने बोला, अब आंसर दे रहा है कौन? जॉय। तो जॉय क्या करेगा? जॉय कभी कभी यहां पे नहीं बोलेगा आंसर, जॉय सैम को वापस बोल देगा, हाँ भाई 8 है इसका आंसर, सर को बोल दो। तो सैम ने रिप्लाई करेगा 8 को। तो जब भी हम लोग चाहते हैं कि ये फंक्शन, जिस फंक्शन में हम लोग लिख रहे हैं, जिस फंक्शन ये इसको कॉल किया, कॉल किया ऐड को, ऐड ने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके ये प्रिंट नहीं करना चाहता है, ये प्रिंट नहीं करना चाहता है, जो ही इज नॉट ट्राइंग टू प्रिंट, यहां पे प्रिंट हम लोग नहीं करेंगे, वैल्यू रिटर्न बैक करेंगे इसको।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, मान लो यहाँ पे k एक वेरिएबल लेंगे और यहां से लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे रिटर्न, RETURN, रिटर्न किसको रिटर्न करेंगे, c को, c हो जाएगा रिटर्न, और यहां पे वॉइड के जगह कौन आ जाएगा, c का टाइप आ जाएगा, इसका नाम है INT। एक फंक्शन हम जब कॉल करते हैं विदाउट विथ वैल्यू कॉल कर सकते हैं, विदाउट वैल्यू कॉल कर सकते हैं, रिटर्न कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे करेंगे वैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका सिंटैक्स उसी हिसाब से लिखना होगा। अगर नहीं रिटर्न करेंगे तो void ही लिख देंगे, यहां पे सारे कैलकुलेट हो जाएगा, और रिटर्न करेंगे तो वहां पे लिखना होगा। So this way we can able to implement function. In our next lecture we will discuss the function in more details. Thank you.